Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope all of you will be fine. So, here I am with our second lecture of English grammar with new energy and with the same consistency. So, students, let's start our second lecture of English grammar. In the last lecture, we have learned about the some terms in English. और मैंने आपको कहा था कि आप वो लर्न करेंगे बिफोर आवर सेकेंड लेक्चर सो स्टूडेंट्स एज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट जस्ट लाइक यू so errors and omissions are acceptable and also your suggestions are welcome. So students, I need your suggestions. अगर आपको लगता है कि कोई improvement की किसी जगह ज़रूरत है तो you can tell me in the comments. Okay students, let's start it with a sentence. Here I am writing a sentence. Ahmed, I am using a name. Ahmed is preparing for the examination. Ahmed is preparing for the examination. So students, look at this. First of all, you are going to identify the subject in this sentence. Ahmed is preparing for the examination. The subject in this sentence is this Ahmed. Okay students, so Ahmed is our subject of this sentence. Here I am using this follow-up of this sentence with the second is he is sure of his success. अहमद जो है वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है और वो अपनी सक्सेस को लेके बहुत श्योर है. नाउ स्टूडेंट्स, here I have written a sentence and the second of that. So in the next you can see that I have used this instead of using Ahmed the subject. Now in this sentence, what is the subject? Subject is this one, and in this subject is Ahmed. Okay, now students, look at this. I have used he instead of Ahmed. This is very basic knowledge for the expertise and also very helpful for the beginners. So students, look at this. If I change this sentence or the next sentence in this way, here I am writing a sentence. Now students, here is my third sentence of this continuing sentences. A hardworking student is always sure of his success. तो देखें, in the first sentence I have used the word Ahmed, and in the next I have used he instead of Ahmed, and in the third sentence I have used a hard-working student instead of Ahmed and he. So students, you can compare the sentences. I could use Ahmed instead of he and also the Ahmed instead of this whole word, a hard-working student. Okay, now we are going to compare the noun, subject and another term. Here I am going to introduce to you. So students, देखें, Ahmed is preparing for the examination. Here I have used the word Ahmed, that is a proper noun, and in the next I have used he instead of Ahmed, that is a pronoun. You are most familiar with the word pronoun. What is a pronoun? A pronoun is actually a sentence or a word that is used instead of a subject. मतलब अगर हम subject की जगह पे कोई भी लफ्ज़ लगाते हैं जो उसके मतलब को वाज़ह करता है, उसको हम pronoun कहते हैं. Okay, instead of a pronoun is used instead of a noun or a proper noun. Okay, so Ahmed here is our proper noun, he is our pronoun, and the next आ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थर्ड सेंटेंस में आ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट यूज़ किया है. आ हार्ड वर्किंग, अगर हम यहाँ पे ही भी लगाते हैं, दैट ही इज़ ऑलवेज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, तो ये इसके मीनिंग को कंप्लीट करता है, लेकिन हमने उसकी जगह पे आ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट यूज़ किया. वट इज़ दिस आ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स? आ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिस इज़ आर नाउन फ्रेज. This is a new term for the beginners, that is our noun phrase. So students, यहाँ पे मैंने एक term use किया है noun phrase. Noun phrase is actually the phrase that is used instead of a pronoun or a proper noun. एक वो चीज़ जो कि pronoun और proper noun को replace करती है और उसके meaning में इजाफा करती है, that is a noun phrase. ये completely हमारे पास एक noun phrase है.
अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेज से फेमिलियर नहीं होंगे. व्हाट इज़ अ फ्रेज? लेट मी टेल यू व्हाट इज़ अ फ्रेज. सो स्टूडेंट्स, फ्रेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स or a sentence, you can say it. I am writing it here, the collection of words but without a verb, जिसमें वर्ब नहीं होता है. कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज ऑल्सो अ सेंटेंस, बट a sentence is having a verb. So students, a collection of words but without a verb, we call it as a phrase. So students, noun phrase मतलब पूरा वाज़ह हो रहा है. नाउन फ्रेज क्या है? ऐसा फ्रेज है जिसमें वर्ब नहीं है लेकिन नाउन के मीनिंग में वो इजाफा करेगा, नाउन को एक्सप्लेन करेगा. दैट विल बी a noun phrase. Okay, now let's come towards the sentence, that what is a sentence. So students, what is sentence? Sentence is actually you can learn it from this formula SVO. In this we are having the subject, verb and the object. So the combination of words having subject, verb and object, that will be our sentence. Okay students, so students, here we having the verb and subject. Let's talk about the subject and the object. Subject and object. Before this I have told you about the noun phrase. So students, noun phrase का इसमें क्या यूज़ आएगा हमारे सेंटेंस में? हमारे सेंटेंस में noun phrase का ये यूज़ है that subject can be a noun phrase and also the object can be a noun phrase. एक noun phrase जो है वो subject की जगह पे भी यूज़ हो सकता है, object की जगह पे भी यूज़ हो सकता है. And what is a noun phrase? Noun phrase is actually consisting on some elements. So students, in today's lecture we are going to describe the noun phrase, and in the next 3 to 4 lectures we are going to describe its elements in detail. What are the elements of the noun phrase? So students, we are having the 4 elements of a noun phrase. Let's describe the elements of noun phrase. होप सो आपको नाउन फ्रेज समझ आ गया होगा. नाउन फ्रेज में हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें देखा कि अ नाउन फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बट विदाउट अ वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज. तो नाउन फ्रेज क्या हुआ हमारे पास? नाउन फ्रेज हमने कहा कि डैट इज कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट. Subject can be a proper noun or can be a pronoun. So here we used a noun phrase instead of a subject. That may be the proper noun or maybe the pronoun. So here we are describing now the elements of the noun phrase. अब हमने क्या करना है? अब हमने elements बताने हैं noun phrase के अंदर क्या होते हैं. उससे पहले हमने sentence पढ़ा था. Sentence में हमने देखा the SVO formula, that we are having a sentence. Actually the combination of the words in which we are having the verb, and now you can easily differentiate between a sentence and a phrase. Phrase is actually a combination of words but without a verb, and sentence is a collection of words but with the verb. Okay, so here SVO formula is describing the difference between the sentence and the phrase. आपको ये समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं noun phrase के elements की तरफ. Let's come towards the elements. So students, here is my noun phrase, और हमने पहले पढ़ चुके हैं कि noun phrase के हमारे पास 4 elements हैं. Let's describe it one by one. The first is determiner. First is the determiner. Now students, first of all look at their names of the elements, and then we will describe them in details one by one. हम पहले ये इसकी पढ़ लेते हैं description, और उसके बाद फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. So students, first जो element है that is determiner, second is adverb, third is adjective and fourth one is noun. So students, आपको parts of speech तो पता होंगे, parts of speech से आप सब familiar होंगे. अगर नहीं है तो हम उनको separate से study कर लेंगे, और अगर हम ये करते हैं तो हमारे ये parts of speech जो इसके elements हैं ये cover हो जाएंगे. Okay, so students, determiner, adverb, adjective and noun. I have used in the last sentences a noun phrase that was a hard working student, और मैंने आपको कहा था कि ये जो a hard working student है ये हमारा noun phrase है.
नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एलिमेंट्स की तरफ देखें, हम इसके पार्ट्स की तरफ देखें, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनके 4 एलिमेंट्स कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ना ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा नाउन फ्रेज़ है वो इनमें से सारे पार्टिसिपेंट जो इसके एलिमेंट्स है उसको कम्प्लीटली फिल करे। इट कैन ओनली यूज़ अ डिटर्मिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव और अ नाउन, देन दैट विल बी आर नाउन, प्रोनाउन और द anything that can be used in the place of the subject. Okay, just have a look at this: a hard working student. In this, this student is our noun. Here I am writing the noun, and this working, hard and a is our determiner, and hard and working is our adverb and the adjectives. Okay, so students, noun phrase आपको clear हो गया, इसके elements भी हमको clear हो गए कि ये determiner, adverb, adjective और noun पे consist करता है। a hard working student, इसको भी हमने explain कर दिया। अब हम चलते हैं इनके elements की तरफ और हम उनको one by one डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द नाउन। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो भी हमारे नाउन से स्टार्ट होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नाउन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ें तो हम इन एलिमेंट्स के कवर करने के फ़ौरन बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चले जाएंगे। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा नाउन, और नाउन के बारे में हम पहले डिटेल से बहुत पढ़ चुके हैं। हम छोटी क्लासेस से ही नाउन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आप मुझे इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं? दैट पर नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और एनी आइडिया इज कॉल्ड आर नाउन। ओके स्टूडेंट, तो नाउन की डेफिनेशन से तो हम सब फैमिलियर हैं, हमें पता है कि नाउन क्या है, और उर्दू में हम इसको कहते हैं इस्म। ये उनके लिए है that are very beginners. So students, what is noun? Noun is the name of a person, thing, place, any idea, material things or the non-material things, all are the noun. Let's describe the types of the noun in detail and then we will use it in the noun phrase. तो स्टूडेंट्स देखिए, नाउन मैंने यहाँ कुछ लिख लिए है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख ली है। हैव अ लुक एट दिस। हियर इज आवर द नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड्स, पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट you should know about the difference between the material things and the non-material thing. हमारे पास material things क्या होती हैं और हमारे पास non-material things क्या होती हैं। Material things are actually the metals like gold, silver or such type of things are called the material things, while we are having the non-material things. You can differentiate between material and non-material things is that you can touch or see the material things while you can't touch or see the non-material things. For example, honesty, bravery, integrity, these are all the non-material things. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको मटेरियल नॉन मटेरियल थिंग्स में डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा। आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं, मटेरियल थिंग्स वो चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वाइल द नॉन मटेरियल थिंग्स आर दोज इन विच जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जस्ट लाइक द ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एटसेट्रा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नाउन जो है, अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा कि हम नाउन को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रॉपर नाउन एंड अदर वन इज कॉमन नाउन। अब इनकी डिस्क्रिप्शन या इनका बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है। फिर भी हम इसको एक ब्रीफली पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, प्लेस, जिसको हम स्पेसिफाई कर दें, दैट विल बी आर प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन हमारे पास क्या होगा? कॉमन नाउन, इसको हम फिर डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हम प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जो है, दैट इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग, पर्सन, वर्ड, प्लेस, मटेरियल, नॉन मटेरियल थिंग्स एटसेट्रा। ओके, अच्छा जी, अब इसकी प्रॉपर नाउन की डिस्क्रिप्शन आगे देख लेते हैं, इसकी डिटेल कि जो प्रॉपर नाउन है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। आप जब भी कोई भी प्रॉपर नाउन लिखेंगे, आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी, आप प्रॉपर नाउन को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते।
ठीक है, आप इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। यू कांट, proper noun can't be put in the plural form. You can write it here, can't be put in plural form. आप इसकी plural form नहीं बना सकते हैं. Okay, for example, here I am writing कायदे-आज़म. कायदे-आज़म is a proper noun. So students, can you make the plural form of कायदे-आज़म? क्या आप कायदे आज़म की प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं कि बहुत सारे कायदे आज़म हैं? और मतलब अब देखें, फर्स्ट फॉर्म जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था उसमें हमने इसको कैपिटलाइज़ करना है, हमने कैपिटलाइज़ कर दिया। दूसरा हमने ये पढ़ा कि हम उसको प्लूरल फॉर्म में पुट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आपको समझ ना आए कि कोई नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन है या फिर हमारे पास कॉमन नाउन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ईजिली आप उसको देख लें कि आप उसको प्लूरल फॉर्म उसकी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर आप उसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, दैट विल बी कॉमन नाउन, नॉट द प्रॉपर नाउन। ओके, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कॉमन और प्रॉपर नाउन में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड रूल है हम उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड जो हमारा रूल है जो कि हमारे प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन करेगा वो ये है कि इसके अंदर कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब या डिटर्मिनर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एडजेक्टिव, एडवर्ब या हमारे पास डिटर्मिनर अगर यूज़ कर देते हैं हम, तो डैट विल नॉट बी अ प्रॉपर नाउन, वो हमारे पास एक नाउन फ्रेज हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले जो है मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की, इसी को हम लेके चलेंगे बिकॉज दिस वन इज सिंपल और आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो थर्ड रूल हमने ये पढ़ा कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और डिटर्मिनर यूज़ नहीं होगा इसके साथ। अगर इसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ हो जाता है, दैट विल नॉट बी अ प्रॉपर नाउन। रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, दैट विल बिकम अ नाउन फ्रेज और वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा। समझ आ गई आपको? अब हम चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये देख लें कि अब हमारे पास आ गया कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर। तो आपने जो टाइप्स पढ़ी होंगी उसमें आपने देखा होगा कि आपने डायरेक्ट नाउन जो है उसकी फर्दर ये टाइप्स पढ़ ली, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फर्दर। So students, remember this, these are the types of सब टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स। ओके, क्योंकि ये सारी जो हैं वो हमारे पास कॉमन नाउन्स में फर्दर उसकी डिवीजन आ जाती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, और इनकी आगे फर्दर डिवीजन जो है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आप इजीली बता सकते हैं। काउंटेबल नाउन क्या है? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब हम इनकी फर्दर जो है वो डिटेल्स पढ़ेंगे और लेट्स स्टार्ट विद आर काउंटेबल नाउन। अब हम काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे और इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास काउंटेबल नाउन होते हैं, यहाँ पे एक रिमेंबर करने वाली बात है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर हो आपके पास, या आपके पास प्लूरल हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वो हमेशा एज अ कलेक्टिव नाउन लेंगे। आप उसको हमेशा एज अ कलेक्टिव नाउन लेंगे। अब कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या होता है जी? कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जब मतलब कलेक्शन ऑफ पर्सन्स या थिंग्स, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, ये क्या है? ये हम पर्सन्स की जब हम कलेक्शंस कर देते हैं तो वो एक अब आर्मी एक बंदा नहीं होता है, आर्मी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब हमारे जो फ़ौजी हैं वो मिलके हमारी आर्मी बना रहे होते हैं। तो जो एक एक फ़ौजी है हम उसको काउंट नहीं कर रहे, हम पूरी फ़ौज को काउंट कर रहे हैं और उसको हमने एक वर्ड दे दिया है, दैट इज़ आर्मी। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन्स चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी वो नाउन जिनको आप गिन सकते हैं चाहे वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, आप उनको हमेशा एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, जब, और एक बात आपने याद रखनी है, जब हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं, ये इसकी एक प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको भी साथ साथ लेके चल रही हूँ। उसकी सिर्फ डिटेल नहीं बता रही, डिटेल तो है वो आप इजीली पहले पढ़ सकते हैं और आपको सिंगुलर, प्लूरल, इन सब चीज़ों के बारे में पहले पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप किसी भी छोटी ग्रामर बुक से इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं, इनकी डेफिनेशन। बेसिकली स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशंस याद करना या इनकी रिकॉग्निशन करना ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये है कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्या इनसे एसोसिएटेड होती हैं और उनसे रिलेटेड हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो
जब भी कलेक्टिव नाउन्स हमारे पास यूज़ होते हैं तो वर्ब हमेशा जो है वो हमारे पास सिंगुलर आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, मतलब हम वर्ब जो है उसको हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। और जेंडर जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, एक हमारे पास टर्म आती है न्यूटर जेंडर। जो न्यूटर जेंडर है ये क्या होता है, ये न्यूटर जेंडर लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज़ होता है, लाइफलेस थिंग्स के लिए हम न्यूटर जेंडर यूज़ करते हैं। तो हमने जो अब ये पढ़ा है, ये पॉइंट हमने पढ़ा कि जो कलेक्टिव नाउन हैं उनके साथ हम हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करेंगे, ओके। अब इसकी मैं आपको विद द सेंटेंस समझा देती हूँ। हमने आर्मी वर्ड यूज़ किया तो हम आर्मी को ही लेके चलेंगे। आर्मी हैज़ आ हाई मोराल। अब आपको इसमें कैसे पता चला कि हमने यहाँ हैज़ यूज़ करना है या हैव यूज़ करना है? सो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आर्मी जो है वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, तो उसके साथ जो वर्ब है वो हम हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ओके। हैज़ अ हाई मोराल, हमारे पास जो है आर्मी, उसकी एक हाई मोराल होता है, तो आर्मी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है और उसके साथ हम वर्ब जो है वो सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक और इसमें भी इख्तलाफ आ जाता है, और वो कैसे है, कलेक्टिव नाउन के साथ कई दफ़ा जैसे एक कलेक्टिव नाउन मेरे पास आ गया कैबिनेट। कैबिनेट वो जो कि काबीना है जो हमारे पास लेजिस्लेशन मेकिंग का काम करती है, तो कैबिनेट की मैं ये आपको मिसाल दे देती हूँ कि बहुत सारे जो कलेक्टिव नाउन हैं वो एज उनके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब की बजाय प्लूरल वर्ब भी आ जाता है। और वो कब आता है, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि प्लूरल फॉर्म में आ जाता है और वो कैसे आता है, हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल यहाँ लिखा था, मैंने कैबिनेट, काबीना, ठीक है जी। तो अगर पहले मैं आपको इसकी सिंगुलर फॉर्म में बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ प्लूरल कब आएगा, सिंगुलर कब आएगा और हमारे पास, और प्लूरल कब आएगा। पहले सिंगुलर देख लेते हैं। द कैबिनेट, नहीं लिख लूँ फिर बताती हूँ। देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख लिया है जो कि शो कर रहा है कि कैबिनेट हमारा जो है वो कलेक्टिव नाउन है और इसको हमने एज अ सिंगुलर वर्ब कब लेना है, ठीक है। द कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू रेज द टैक्सेस। तो कैबिनेट ने क्या डिसाइड किया है कि वो टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखें कि मैंने इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, क्योंकि काबीना जो है वो एज अ होल एक्ट कर रही है, एज अ कलेक्टिव नाउन एक्ट कर रही है यहाँ पे। तो मैंने इसको ये जो वर्ड है कैबिनेट, इसको मैंने कलेक्टिव नाउन लिया है और उसकी मैंने आपको डिटेल बता दी कि मैं इसके साथ सिंगुलर वर्ब कब यूज़ करूँगी। अब आ जाता है जी कैबिनेट या कुछ कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ हो जाता है। अब प्लूरल वर्ब कैसे इसके साथ यूज़ हो जाता है, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी ये किसी भी कलेक्टिव नाउन में अब अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर इख्तलाफ आ जाए, इख्तलाफ मतलब अगर आप उसके मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कैबिनेट के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आर्मी के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी कलेक्टिव नाउन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहाँ आपके पास वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा, ठीक है। ये रूल्स हैं जो कि मोस्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। दैट्स वाई मैं डायरेक्टली उनको हिट कर रही हूँ, ओके। सो द कैबिनेट वर डिवाइडेड ऑन द इश्यूज ऑफ टैक्सेस। सो स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं कि कैबिनेट, हम यहाँ कैबिनेट के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो काबीना है वो टैक्सेस के इश्यूज पे डिवाइड होगी, ठीक है। अब कैबिनेट कोई चीज़ नहीं है जो टूट के जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द मेंबर्स। सो उसके जो मेंबर्स हैं वो डिवाइड हो गए हैं, कुछ मेंबर्स जो हैं वो दे आर अगेंस्ट द इशू ऑफ टैक्सेस एंड सम आर इन द फेवर। तो हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट के हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम आर्मी के मेंबर्स की बात करेंगे तो आप यहाँ हैज़ की जगह पे हैव लगाएंगे। हैज़ जो है वो हमारे पास सिंगुलर वर्ब होता है और हैव हमारे पास प्लूरल वर्ब होता है। तो कैबिनेट वर डिवाइडेड ऑन द इश्यूज ऑफ द टैक्सेस, हमने यहाँ कैबिनेट वॉज डिवाइडेड क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि हम यहाँ कैबिनेट के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज की जगह पे वर्ब लगाया है, वर्ड लगाया है, एंड वर इज़ आर प्लूरल वर्ब। सो स्टूडेंट्स, हमने भी पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। और अगर प्लूरल वर्ब आता है तो किस सिचुएशन में आएगा,
और स्टूडेंट्स जब कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ हो जाएगा, हैव यूज़ हो जाएगा इंस्टेड ऑफ हैज़, या आर यूज़ हो जाएगा इंस्टेड ऑफ इज़, तो कलेक्टिव नाउन चेंज हो जाएगा इन द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। हम इसको कहेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ये टर्म याद करना इतना कंपल्सरी नहीं है। यू शुड नो डैट व्हेन द प्लूरल फॉर्म इज़ यूज्ड एंड व्हेन सिंगुलर फॉर्म इज़ यूज्ड। ओके, अब हमने जो काउंटेबल नाउन है उसकी हमने डिटेल पढ़ ली है। एंड नेक्स्ट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, इसके पार्ट्स, इसकी डिटेल्स, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अब हम इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने एक्चुअली स्टार्ट किया है नाउन फ्रेज से। उसके बाद हमने नाउन फ्रेज पढ़ा, नाउन फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो नाउन फ्रेज हैं इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, और उनको फिर हमने डिटेल वाइज स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट किया नाउन से, और नाउन फिर हमने नाउन की डेफिनेशन, उसकी डिटेल, उसकी टाइप्स, और उसके बाद काउंटेबल नाउन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द अनकाउंटेबल नाउन्स। सो स्टूडेंट्स, आपकी सजेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है किसी और तरह इसको बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है, देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।